This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Okay, good evening. Welcome back to the next session. And in the last session, we have studied that control chart for variables, in which we have studied that control chart for mean, control chart for range, and control chart for variability means range chart and S chart. And if any point lies outside, then we can say that the process is out of control. And we also check there is some pattern that is trained cyclic pattern, or there is most of the point lies around the upper control line and lower control line. At that time also we said that our process is out of control. And now we come next concept, process capability. If our control chart shows that all the variable, all the points are lies inside and there is no no specific pattern, then we also that indicate that process is under control. But we have also checked the process capability. At that time the process will be under control, but it is not necessarily that it will fulfill the it fulfill the requirement specification limit as we have required. So for that we use the process capability. Okay, तो 2 marks का generally question process capability के ऊपर आता है कि what is, ये तो question आ जाएगा what is process capability, या इसका कोई भी numerical या इसकी theory. Okay, तो process capability is a measure of the ability of a process to meet specification. तो ये किसके लिए आता है कि हमारा जो process है वो अंडर कंट्रोल तो शो अप कर रहा है, पर क्या वो स्पेसिफिकेशन जो हमने स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे क्या उनको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसको चेक करने के लिए वी गो फॉर द प्रोसेस कैपेबिलिटी. इट टेल्स अस हाउ गुड एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज. इवन though the process maybe seems to be under statistical control, it is necessary to see whether the process is capable to manufacture product within the specific limit or not. For that we use a process capability. Process capability can be defined as the 3 sigma. Generally sigma is unknown, so we estimate sigma as we have estimate in range chart, x bar chart or s chart, r bar upon d2, और अगर हम s से estimate करेंगे तो s bar upon c4. And we compare the process capability with the tolerance. Tolerance is as indicate as upper specific limit minus lower specific limit. Specific limit का concept आया कि नहीं है? Just a minute. Yes, अभी ये कुछ छूट गया है भाई, sorry. Yes, process capability यहाँ से start है. तो process capability समझने से पहले हमें कुछ और terms देखनी होंगी. एक होता है specification limit, दूसरा होता है control limits, and third होता है natural tolerance limit. Okay. तो स्पेसिफिकेशन लिमिट जनरली वो होती हैं जो हमें जो कंज्यूमर है वो हमें बताएगा कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन चाहिए और आपका जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन तो बनेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहेगा. मान लो मैं जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किया है, एक क्रिकेट बॉल है तो क्रिकेट बॉल का स्टैंडर्ड वेट 160 ग्राम है. तो जो हमारा कंज्यूमर है जो उस बॉल को ले रहा है तो एग्जैक्ट 160 ग्राम तो नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. तो वो जो स्पेसिफाई करेगा कि आपका जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस ये हो सकता है, तो इट मे बी कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन लिमिट. तो स्पेसिफिकेशन लिमिट स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर और द डेवलपर. ओके, जो हमारा डिजाइन जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, जनरली वो सेट करता है. तो दे आर द कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन लिमिट. कंट्रोल लिमिट्स जो हमने अभी बनाई एक्स बार कंट्रोल लिमिट्स जो हम पढ़ के आए, तो दे आर द कंट्रोल लिमिट्स. एंड नेचुरल टॉलरेंस लिमिट. नेचुरल टॉलरेंस लिमिट देखिए, जब हमने कंट्रोल लिमिट बनाया तो हमने कोई एक
स्टैटिस्टिक्स हमने साथ लिया, या तो हमने x बार लिया या r लिया या s लिया, तो अगर हम उसकी लिमिट बना रहे हैं, जैसे हमने x बार की बनाई म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा रूट n, तो दीज आर कॉल्ड द कंट्रोल लिमिट्स। अगर हम x की लिमिट बनाएं, जो हमारा वेरिएबल था वेट, अगर हम उसकी लिमिट बनाएं तो वो हमारी कहलाती है नेचुरल टॉलरेंस लिमिट, और x की जो लिमिट बनेगी वो बनेगी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। जो स्टैटिस्टिक्स की बनेगी वो तो कहलाएंगे हमारी कंट्रोल लिमिट्स, और जो हमारी वेरिएबल की सिंपल बनाएंगे दिस कॉल्ड द नेचुरल टॉलरेंस लिमिट। ओके, तो ये कभी कभी डिफरेंस क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे बताइए आपके कौन सी लिमिट हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट है, कौन सी लिमिट हमारी नेचुरल टॉलरेंस लिमिट है, कौन सी कंट्रोल लिमिट्स है। दिस वन, एक क्रिकेट बॉल सर मैन्युफैक्चर। ये नेचुरल टॉलरेंस, यस, सॉरी क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? ये नेचुरल टॉलरेंस लिमिट जो है ये कहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली हम, इफ आई टॉक अबाउट? नेचुरल नहीं, इसका यूज तो यहाँ पे नहीं है नेचुरल टॉलरेंस लिमिट का। ओके, पर ये तीनों टर्म्स हमारी यूज होती है कहीं ना कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे है, तो बस डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मेन तो बेसिकली डिफरेंस। आई बिलीव स्पेसिफिक लिमिट तो वी कैन यूज व्हेन Yes, specification limits are those which are शायद आवाज में specified by बहुत the लैग आ रहा है manufacturer. मे बी शायद। Yes, और कंट्रोल लिमिट्स वो होगी हमारे जो चार्ट में इंडिकेट करेंगे, और नेचुरल टॉलरेंस यानी जो हमारी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। यस म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा, ये लिमिट्स हमारी जो जनरल हैबिट है उसकी, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी जो रेंज है, जनरल रेंज, दे आर रिप्रेजेंट बाय द नेचुरल टॉलरेंस लिमिट। So a cricket ball manufacturing company wants to control the weight of the ball. 25 samples, each of size 4 are collected. The sum of average and sum of sample range are found to be this. If the consumer specified the weight of the ball is 160 plus minus 3 sigma, find the estimated process mean, standard deviation. Also find the specification limit, control limit and natural tolerance limit. तो पहले तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि it is the sum of the averages. It means that it is given that summation x bar, it is 4010, and summation of range, it is given as 72. So first of all, it said that find the estimate of process mean. It means we have to estimate mu cap. So mu cap is estimated by the x double bar. So first of all, we have to find out x double bar. So x double bar is find out if we divide the sum of these x bar by the number of samples, so we can find out the x double bar. And second, it required that standard deviation, estimate of standard deviation, this, and this is estimated by r bar upon d2. So d2 is here given, so we can estimate r bar d2. Okay, now next is specification limit. So specification limit are the limits which are specified by the consumer, and it is the 160 plus minus 3. So it is the specification limits. Control limits, here because we use the it is not mentioned that which control chart we have to use, but here it is given that control the weight of the ball. So weight of the ball is यानी weight को control करना चाह रहा है, तो we go for the x bar chart and we use the limit of x bar chart. The x bar chart is x double bar plus minus 82 and it is r bar. So we can find out the control limit with the help of this. Now the third one is the natural tolerance limit. Natural tolerance limit is mu plus minus 3 sigma. And we do not know the mean, so we put the x double bar for the mean and plus minus 3 sigma. Sigma is estimated by, we have already find the value of sigma is this, or otherwise we can use just r bar upon d2. So we can easily find out the all types of limits, specific limits, natural tolerance limit, and the rest is control limits. Okay, so here the processor capability, for that we use the
specification, upper specification limit and lower specification limit. If 6 sigma less than tolerance, then the process is capable to producing products of desired specification. अगर इस लिमिट से छोटा है तो it is we can say that the process is capable to produce the specification items. और yeah, and अगर ये इसके इक्वल है तो in this case the process is capable to meet specification only if no shift in the process mean or change in the process variability take place. कि जो मीन है उसका वो बार बार मतलब चेंज ना हो, शिफ्ट ना हो उसके अंदर. मैंने पहले तो बहुत लगभग 5-6 पेज का बनाया था इसको, पर ये पहले ही ब्लॉक बहुत हैवी हो गया था तो बहुत शॉर्ट में रखा है. अगर 6 सिग्मा बड़ा हो जाएगा इससे टॉलरेंस से तो इन दिस केस द प्रोडक्ट डू नॉट मीट द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन. ओके, तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो इसको मैंने इस तरह से भी शो अप किया है. यस, एक गैरेज और एक कार. तो जो यहाँ पे कार है वो इंडिकेट कर रही है आपकी टॉलरेंस को. ओके, तो अगर सॉरी कार हमारा किसको शो कर रहा है इस एग्जांपल में, 6 सिग्मा को, सॉरी कार हमारा 6 सिग्मा को प्रेजेंट कर रहा है. तो और ये जो गैरेज का साइज है ये इंडिकेट कर रहा है उसके टॉलरेंस को. तो अगर 6 सिग्मा छोटा है यानी कार छोटी है गैरेज से तो इजीली पार्क हो जाएगी. और अगर ये इक्वल है तो मतलब बहुत केयरफुली हमें इसको पार्क करना पड़ेगा. और अगर ये बड़ी है तो ये पार्क ही नहीं होगी. ओके, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं. सिंपली है, केवल वैल्यूज दी हुई है, आपने 6 सिग्मा निकालना है. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है. ओके, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा. कुछ ऐसा है नहीं जो बताऊं इसमें. 6 सिग्मा फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट अप कर ली, आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा सब कुछ. ओके, तो ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 2. और नाउ वी कम ऑन द यूनिट नंबर 3, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स. तो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, तो फर्स्ट वी डिवाइड द कंट्रोल चार्ट. जैसे मैंने टेस्ट को डिवाइड किया था, पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर टेस्ट फॉर मीन भी हमने डिवाइड किया था. फॉर व्हेन सिग्मा इज नोन तो जेड टेस्ट, सिग्मा इज अननोन तो टी टेस्ट. तो ऐसे यहाँ पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे. अगर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है तो वी गो फॉर द कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल. और अगर मेजरेबल नहीं है, जस्ट हम डिवाइड, हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम एज ए क्लासिफाई कर रहे हैं डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव टर्म्स, देन इट इज वी गो फॉर द कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स. And control chart for attributes further divided into 2 categories, control chart for defective and control chart for defects. Okay, so now this unit is devoted to the control chart for defective. Defective means if an item have some defects, then it is called the defective. Okay, कोई भी डिफेक्ट है, मान लीजिए अगर मैं क्रिकेट बॉल को ही ले रहा हूं, अगर उसमें मान लीजिए उसकी जो सरफेस है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी शेप प्रॉपर नहीं है, तो बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं. पर और एक रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से हम उसको डिफेक्टिव की टर्म्स में डाल देते हैं. तो यहाँ पे भी दो, फिर आगे इसको डिफेक्टिव्स के लिए भी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव या फ्रैक्शन डिफेक्टिव, और सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव. तो ये दोनों भी किसी एक क्वेश्चन के लिए दोनों भी यूज हो सकते हैं. पी चार्ट भी यूज हो सकता है वहां पे और एनपी चार्ट भी हो सकता है. एनपी चार्ट ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन ऑफ द पी चार्ट, क्योंकि जो एनपी चार्ट बनेगा उसमें जो वैल्यू आएंगी वो हमारी नंबर में होंगी, 2, 6, 8, और जो पी आएगा वो हमारा प्रोपोर्शन है तो वो पॉइंट्स में आएगा. तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो पॉइंट्स का ग्राफ बनाना थोड़ा टफ पड़ता है एज ए नंबर. तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि दोनों चार्ट यूज हो सकते हैं तो यू शुड गो फॉर द एनपी चार्ट. चलिए, अब कहाँ पे हम इसे यूज करेंगे, तो जहां पे भी हम नंबर ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम या तो पी चार्ट लगा सकते हैं या एनपी चार्ट लगा सकते हैं. दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे. तो फिर ये क्यों बना भाई, पी बना दिया था, फिर एनपी की जरूरत क्यों पड़ी? तो एनपी, क्योंकि अगर हम किसी से कहें कि भाई इसमें 20% डिफेक्टिव है और एक कहें कि इसमें हम 10 डिफेक्टिव हैं, तो वहां पे जो भी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं तो उनको मतलब 10 डिफेक्टिव समझ में ज्यादा आता है 20% के कंपैरिजन में. तो ये इजी वे टू अंडरस्टैंड, तो फिर हमने ये बनाया
एनपी चार्ट। पर एनपी चार्ट की कुछ लिमिट है कि एनपी चार्ट हम कुछ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जबकि पी चार्ट उन दोनों सिचुएशन में यूज हो जाएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। तो पहला है कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव। तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव यानी पी इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, मान लेते हैं डी है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो पी बनेगी, तो हम पी को ही प्लॉट करेंगे। जैसे हमने एक्स बार में एक्स बार को प्लॉट किया था, तो ये हमारा फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट है, प्रोपोर्शनल डिफेक्टिव चार्ट है। तो हम हर सैंपल के लिए पी कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे सैंपल नंबर होंगे, 3 लिमिट्स, 3 लाइंस निकाल लेंगे, सेंटर लाइन, अपर कंट्रोल लाइन, लोअर कंट्रोल लाइन, और पी को हम प्लॉट करेंगे। रूल सब वही रहेंगे जो हमारे हमने वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में पढ़े हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है वो पी बन गई, ना कि एक्स और आर और एस। ओके, अब पी के लिए फिर हमें, क्योंकि हमें लिमिट्स निकालनी है, तो पी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो पी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पी आपने एनपी साइड, यस, एक्स अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है या नंबर ऑफ सक्सेस है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है कि वो बाइनोमियल होता है, जिसका मीन तो एनपी था और वेरिएंस एनपीक्यू था, एनपी और एनपीक्यू। तो जो पी का अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हम, तो पी का डिस्ट्रीब्यूशन पी क्या है? अगर हम पी देखें तो पी इज डिफाइन एज नंबर ऑफ डिफेक्टिव। अगर मैं एक्स कह रहा हूं नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं एंड सैंपल साइज है, तो इसका अगर हम मीन की बात करें तो इसका मीन कितना होगा? इसका मीन हो जाएगा एन, बाहर ले सकते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है जिसका मीन है एनपी, तो एन 1/n, एन पी, तो ये n से n कैंसिल हो गया p, तो यानी इसका जो मीन है वो तो p है, और वेरिएंस इसका आ जाता है, आपने प्रोपोर्शन का पढ़ा भी था, pq/n, तो वेरिएंस बन जाता है pq/n। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो p का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा हो जाएगा p इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल लार्ज सैंपल के केस में, और जिसका मीन तो p होगा और वेरिएंस pq/n। तो यही हमें चाहिए। तो हमारी जो सेंटर लिमिट, सेंटर लाइन हुई, सेंटर लाइन हमारी हो गई P, तो P जनरली हमारा अननोन होता है, तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे। और अपर कंट्रोल लाइन, लोअर कंट्रोल लाइन, इट इज P प्लस माइनस 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब इसका वेरिएंस, यानी P क्यू को 1 - P भी लिख सकते हैं अपॉन n। तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, जो हम कांस्टेंट वहां पे हमने A2 A D2 वो यहाँ पे नहीं है, वो केवल वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स में है। तो जनरली ये चार्ट ज्यादा इजी हैं उनके कंपैरेटिवली, मीन और वेरिएंस के कंपैरेटिवली, और छोटे भी होते हैं। ओके, तो ये हो गया। अगर P अननोन है तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे। P को एस्टिमेट करने के लिए हम P बार यानी सैंपल जो प्रोपोर्शन निकलेंगे उनका भी अगर मीन ले लेंगे तो हम उससे इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। सॉरी, एक गलती कर दी मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया P बार। बाकी सब कहानी सेम है जैसे पहले आपने करी थी। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं, आज मुझे पूरा कोर्स खत्म कराना है अपना ये, तो अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं। पहले सीधा मैं चलता हूँ इसकी लिमिट्स पे। तो ये P प्लस माइनस ये बन गया। P जब अननोन है तो इसकी जगह हम P बार यूज कर सकते हैं, तो इन्होंने P बार यूज कर लिया। अगर हमारे कुछ पॉइंट बाहर हैं तो सेम रूल रहेगा, हम उनको लेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, वो सब आप जानती हैं। चलिए, तो मैं बता रहा था कि हम यहाँ पे सैंपल साइज क्यों लार्ज लेते हैं। तो सैंपल साइज जनरली मैंने कहा था कि जो हमारे कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स हैं, दे फॉर दैट द सैंपल साइज शुड बी स्मॉल, वेयर एज व्हेन वी यूज द एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट देन द सैंपल साइज शुड बी लार्ज। तो यहाँ पे जो सैंपल साइज होगा वो कम से कम भी 20, 50, 100 इतने का सैंपल साइज होगा। क्यों होगा वो देखते हैं। यस, देखिए, अगर हम कह रहे कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई हमारा जो हम कह रहे कि जो लॉट्स बन रहे हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें 2% डिफेक्टिव है, तो 2% डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? 100 में 2 डिफेक्टिव है। तो अगर मैं सैंपल 10 का ले लूं या 4 का ले लूं तो कितने डिफेक्टिव आएंगे? क्या प्रोबेबिलिटी होगी डिफेक्टिव आने की? 0 पॉइंट, सिंपल करें, 100 में कितने डिफेक्टिव हैं? जैसे बच्चे करते हैं 2, और अगर मैं सैंपल साइज अगर मैं 4 का ले लूं यहाँ पे तो कितने डिफेक्टिव होंगे? 2/100 इंटू 4, 25, यानी 1 डिफेक्टिव भी नहीं आएगा।
तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है कि मेरे जो सैंपल है उसमें डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसका मतलब तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, और कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा तो फिर मेरा कंट्रोल चार्ट तो हमेशा ये दिखाता रहेगा कि ये अंडर कंट्रोल है, जबकि इसमें वो डिफेक्टिव बना रहा है, 2% डिफेक्टिव बना रहा है। तो इसलिए जब जितनी भी जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है चल रही है तो हमें सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो हमारे सैंपल पे आ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे फॉर वी गो फॉर द लार्ज सैंपल साइज। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल थे, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का तो आता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में, और 5 मार्क्स का आता है कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। कोई भी आ सकता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ कर लोगे आप सिंपल। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सैंपल नंबर दिया है, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव दिया है। तो प्रोपोर्शन डिफेक्टिव दिया है तो देखिए आप वहां पे अब दो चीजें देखेंगे। अगर डिफेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है तो वी गो फॉर द पी और एनपी चार्ट, और अगर डिफेक्ट्स यूज हो रहा है तो यू शुड गो फॉर सी और यू चार्ट। यहाँ पे क्लियर लिखा भी है कहीं पे। यस, यस, कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव वर्ड जो यूज हो रहा है तो वहां पे तो हम लगाएंगे पी या एनपी, और अगर डिफेक्ट्स यूज हो रहा है कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्ट्स तो वहां पे सी लगेगा या यू चार्ट लगेगा। तो मैंने बताया या तो आप पी लगाओ एनपी लगाओ, दोनों सेम लग सकते हैं अगर डेटा हमारा इस तरह से है। ओके, ऐसे ही सी और यू में भी दोनों लग सकते हैं एक साथ, पर कुछ कंडीशन है जहां पे केवल हमें यू ही लगाना पड़ेगा, और कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पे हम पी ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो वो देखते हैं क्या है, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा लगेगा, है ना, इसमें डिस्कस करेंगे। तो पी हो गया हमारा, अब एनपी देखते हैं। एनपी, यस, एक और है पहले। पी की दो क्वालिटी हैं, पी चार्ट फॉर वेरिएबल सैंपल साइज। देखिए अगर सैंपल साइज आपका कांस्टेंट है तब तो आप एन लगाइए या एनपी लगाइए, सॉरी पी लगाइए या एनपी, दोनों लग जाएंगे। पर अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो भी वेरी कर रहा है, कभी तो हम 45 का सैंपल ले रहे हैं, कभी हम 30 का सैंपल ले रहे हैं, या कभी हम 100 का सैंपल ले रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम वहां पे एनपी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको प्रोपोर्शन में जाना पड़ेगा। डिफेक्टिव में आप ये कहोगे 5 डिफेक्टिव है, तो 5 डिफेक्टिव 45 में है या 100 में है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन पे जाना पड़ेगा, अगर सैंपल साइज वेरी कर रहा है तो। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है तो फिर आप दोनों कोई भी लगा सकते हो, पी भी लगा सकते हो और एनपी भी लगा सकते हो। अब सैंपल साइज वेरी कैसे होगा, क्योंकि जनरल सैंपल तो हम खुद लेते हैं, तो हम क्यों हम वेरी वेरी कराएंगे सैंपल को। पर कभी कभी ये रूल बना रहती है इंडस्ट्री के, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो उस सिचुएशन में कभी कभी हमारा सैंपल साइज वेरी कर जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा ऐसा नहीं कि हम पर डे 1000 ही आइटम्स बनेंगे, कभी वो 900 बन जाते हैं, कभी वो 10,000 सॉरी 1000 प्लस बन जाते हैं। तो अगर ये रूल बना दिया कि आपको 10% लेना है तो सैंपल साइज वेरी करेगा। तो अगर सैंपल साइज वेरी करेगा तो पी चार्ट ही बनेगा। ऐसे ही डिफेक्ट्स के लिए भी अगर सैंपल साइज वेरी करेगा तो यू चार्ट बनेगा। चलिए अब ये कैसे, इसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर हमारा कंट्रोल चार्ट सैंपल साइज अगर हमारा वेरी कर रहा है तो हम पी चार्ट बनाएंगे। तो दो अप्रोच यहाँ पे काम करेंगी। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आप जो हमारी लिमिट्स थी सेम ही रहेंगी, पर एन, क्योंकि एन हमारा इस बार क्या है, फिक्स नहीं है, तो एन की जगह हमारा सॉरी क्या है, एन आई यूज होगा। तो कंट्रोल लिमिट्स जो अपर कंट्रोल लाइन है लोअर कंट्रोल लाइन है, जब एन वेरी करेगा तो ये भी हर पॉइंट पे हर सैंपल पे यूसीएल और एलसीएल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब तक तो हमारी जो लाइन थी वो सेंट्रल लाइन तो सिंपल बनती थी, अपर कंट्रोल लाइन भी ऐसे बन जाती थी, पर इस वाले केस में अपर कंट्रोल लाइन भी हमारी जिग जैग फॉर्म में बनती है इस तरह से, क्योंकि हमारा एन वेरी कर रहा है, और एन वेरी करने के बाद हमारी अपर कंट्रोल लाइन लोअर कंट्रोल लाइन भी हमें हर पॉइंट पे आपको निकालनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे ये ऐसे फॉर्म बनेगी। तो ये थ्योरी के हिसाब से हम नहीं देते, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आप हर बार एन निकालेंगे, एन की वैल्यू रख के यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो बहुत टफ हो जाता है। तो थ्योरी के लिए तो ये नहीं आता, पर लैब में कभी कभी ये आ जाता है वेरिएबल का। चलिए फिर दूसरी अप्रोच क्या है भाई,
तो यहाँ तो ये रहेगा अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन आपकी जिगजैग फॉर्म बनेगी। दूसरी कहा कि इससे बचने के लिए हम कह सकते हैं कि हम सैंपल साइज जो हमारा वेरी कर रहा था, हम उसको ऐसा करते हैं कि एनआई को एस्टिमेट कर लेते हैं, एन बार से रिप्लेस कर देते हैं, सैंपल का भी मीन निकाल देते हैं। तो सेकंड अप्रोच ने कहा कि आप एनआई की जगह एन बार ले लो। तो एन बार लेने की वजह से क्या होगा, आपका जो लिमिट्स हैं, कंट्रोल लिमिट्स हैं, वो आपकी सेम बन जाएगी, फिर वो वेरी नहीं करेगी। तो अगर आप एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन आता है तो आप सेकंड अप्रोच से उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। In the production of tires of an automobile, the output of a given size are inspected every day prior to the tire being given to finished goods store. The number of defective tires found every day inspection is summarized in the following table. ये सैंपल नंबर है, नंबर ऑफ टायर इंस्पेक्टेड 650, 110। तो यहाँ पे सैंपल साइज देख रहे हैं, वेरी कर रहा है। और किस चीज के लिए पूछ रहा है, कंट्रोल अप्रोप्रिएट कंट्रोल चार्ट्स, अप्रोप्रिएट कंट्रोल चार्ट्स वर्ड यूज करा है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव दिया है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव दिया है तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल तो लगेगा नहीं, तो या तो हमारा कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट ही लगेगा। और यहाँ पे डिफेक्टिव वर्ड्स यूज हो रहा है, तो या तो हम एन लगाएंगे, सॉरी एन पी लगाएंगे या पी लगाएंगे। तो यहाँ पे सैंपल साइज वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, पी चार्ट लगाएंगे। तो पी चार्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पी निकालते हैं। तो पी 70 अपॉन दिस, 74 अपॉन दिस, तो हमारा ये पी आ जाएगा। और फिर फर्स्ट अप्रोच से तो ये पी आ गया, अपर कंट्रोल लाइन सेंटर लाइन, तो क्योंकि सेंटर लाइन हमारी है सीधा पी बार हमारी सेंटर लाइन है, तो ये तो हमारी वेरी नहीं करेगी क्योंकि एन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो सेंटर लाइन तो हमारी आएगी कांस्टेंट, तो ये हमारी सेंटर लाइन तो होगी कांस्टेंट, और अपर कंट्रोल लाइन लोअर कंट्रोल लाइन आपकी वेरी करती जाएगी। तो फिर इसको प्लॉट कर सकते हैं सिंपल, जैसे पहले हमने करा था। तो ये जिगजैग फॉर्म में बनी हल्की सी, और ये कुछ पॉइंट हमारे आउटसाइड जा रहे हैं, तो इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल है। सेकंड अप्रोच में क्या कर सकते हैं, एन को हम फॉर्मूले में एन बार निकाल लें, यानी जितने भी सैंपल्स थे उनका सबका मीन ले लें, सैंपल साइज। तो ये सैंपल थे, इनका ये टोटल ये आ गया, इसको डिवाइड कर सकते हैं 20 से, तो मीन आ जाएगा, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो फिर हमारा क्या बना, ये हमारा मीन आ गया, तो ये हमारी अपर कंट्रोल लाइन हो गई, ये हमारी लोअर कंट्रोल लाइन हो गई। अगर बाय द वे लोअर कंट्रोल लाइन निगेटिव चली जाती है तो हम उसको जीरो मान लेते हैं। ओके, किसी क्वेश्चन में शायद निगेटिव ही जाएगी, तो उसको हम जीरो मान लेंगे। तो दोनों अप्रोच से आएगा आंसर सेम ही। शायद एक असाइनमेंट में क्वेश्चन था लैब के शायद, तो वहां पे दोनों अप्रोच से पूछा हुआ था इसे, तो दोनों अप्रोच से करना है आपको, ऐसा नहीं आप एक ही अप्रोच लगा के छोड़ दोगे लैब में। ओके, चलिए एनपी चार्ट, तो एनपी चार्ट सेम काम करेगा, पर ये क्योंकि इजी रहता है समझने के लिए, तो हम वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यस, तो द पर्पस ऑफ दिस चार्ट इज टू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द ऑपरेटर हु मे understand actual number of defective easily rather than the proportion defective. However, there is one drawback of NP chart. It is used only for equal sample size. Okay, because for example, suppose we get one defective item in a sample of 10 and one defective item in samples 100. In both samples, we get one defective item, but the first sample show a much higher rate of problems, that is 10% in corresponding to the second. तो खाली वन कहने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि आप सैंपल साइज नहीं बताओगे कितना लिया है तब तक आप, तो अगर सैंपल साइज वेरी कर रहा है तो हम वी कैन नॉट गो फॉर द एनपी चार्ट। ओके, क्योंकि साइंस नहीं बनेगी। एक यस, एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, टाइम तो है नहीं उसे बताने का, कि एक बार मैं शायद इंटरव्यू में किसने बताया था कि पता नहीं मैंने बताया आपको नहीं बताया, कि मीन, एक तो मीन है हमारा मेजर और एक प्रपोर्शन है, तो कहाँ पे इस किसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो काउंटर एग्जांपल था कि दिल्ली में तो रोज हमारे मान लो 20 डेथ्स हो रही हैं और बॉर्डर पे हमारी 5 डेथ्स हो रही हैं, तो कहाँ पे रहना ज्यादा ज्यादा ऑन एन एवरेज, कहाँ पे रहना ज्यादा सीरियस है। तो अगर वैसे देखें डेटा के हिसाब से तो हमारा 20 डेथ दिल्ली में ज्यादा हो रही है, और ये हमारे बॉर्डर्स पे है या कहीं में जम्मू कश्मीर में है, तो वहां पे 5 कैजुअलिटी हो रही है। तो फिर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे दिल्ली ज्यादा ज्यादा सीरियस नहीं है रहने के लिए, ज्यादा डेंजरस नहीं है रहने के लिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे मीन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोपोर्शन यूज का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज है वो दोनों में डिफर है। ओके, तो ये प्रोपोर्शन की क्या है, यहाँ पे इस सिचुएशन में प्रोपोर्शन यूज होगा। तो जहाँ पे सैंपल साइज वेरी करेगा, उसकी कंपैरिजन करनी हो तो वहां पे हम पी ना यूज कर, सॉरी एनपी या मीन यूज ना करके हम पी यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे लेते हैं।
तो ये कैसे बनेगा, इसका भी सिंपल, बस फॉर्मूला ही आपने यहाँ रखना है। तो NP प्लस दिस, यहाँ पे केवल n से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो P अगर अननोन है तो P बार आ जाएगा, P बार आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो आपका पहले से है। तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दिया है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स में हमें क्या क्या चाहिए, पहले P निकालना पड़ेगा, तो P निकाल लेते हैं। सॉरी, कहाँ पे पूरा हो गया क्या यूनिट? ओहो, ये शायद पूरी यूनिट नहीं है। ओके, तो आप देख लीजिएगा, इसका कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये सारी यहीं तक ही है यूनिट, और पता नहीं आपके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, तो ये तो पूरा यूनिट नहीं है, यहाँ पे कम आ रखा है, देख लीजिएगा आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में। यस, कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो डिफेक्टिव में कंटेन वन और मोर डिफेक्ट्स। तो इंडस्ट्री में ये देखा गया कि भाई हम जो आइटम जिसमें केवल एक डिफेक्ट है उसको भी हम डिफेक्टिव कह रहे हैं, और जिसमें 10 डिफेक्ट्स हैं उसको भी डिफेक्टिव कह रहे हैं। तो पर ऐसा तो नहीं है, वन डिफेक्टिव इतना सीरियस नहीं है जितना 10 डिफेक्टिव है, तो क्यों ना हम डिफेक्ट्स को ही कंट्रोल करें। तो फिर कंट्रोल, डिफेक्ट्स के कंट्रोल करने का वो शुरू हुआ सिलसिला। तो इसके लिए दो चार्ट हैं, सी और यू। सेम यहाँ पे भी वही है, यू चार्ट हमारा दोनों जगह काम करेगा, जहां पे सैंपल साइज हमारा सेम है, यानी इक्वल और अनइक्वल है, वहां पे हम यू चार्ट लगा सकते हैं, और सी चार्ट केवल वहीं पे लगेगा जहां पे हमारा सैंपल साइज सेम है। ओके,